रहेंगे और आपके जो ना चेहरे की जल्द भी सही रहेगी। लेकिन अगर पाँव कोई तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जो कि अक्सर नहीं दिए जाते हैं, तो फिर आपको ये मसले रहेंगे और उन मसलों से दो चार आप रहेंगे। बहरहाल अगर किसी भी मसले से दो चार हैं और आपको लगता है कि ये आपकी ब्यूटी को बिल्कुल ख़राब कर रहा है, आपकी लुक्स को, आपकी सेहत को बिल्कुल ही सही नहीं महसूस करते हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है 01895 यही है ना, बिल्कुल 445546 इस वक्त आपको नज़र आ रहा है आपके टेलीविजन सेट पे। बात कर सकते हैं मुझसे ब्यूटी के हवाले से, कुछ भी कहना हो। बहुत सारे लोगों को एस्मा होता है, उसके भी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं घर के अंदर पड़ी हुई अशिया का सही इस्तेमाल से। हम गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते रहते हैं, गलत खाने खाते रहते हैं, तो इस तरह के मसले हमें हो जाते हैं। जैसे हे फीवर कितना बड़ा मसला है इस मुल्क में, इसका भी हल हो सकता है अगर आप अपने खानों को दुरुस्त कर लें, अपने सोने के पैटर्न को दुरुस्त कर लें, अपने बिस्तर को सही रखें, अपने पाँव की मसाज करें, तो आपकी हे फीवर भी ख़त्म हो सकती है। ये वो बीमारियां हैं जिनको हम मेडिकल प्रॉब्लम नहीं कहते हैं, ये सिर्फ हमारी एलर्जीज़ होती हैं जो कि हमारे सही ना खाने लेने से, सही ग़िज़ा का ना इस्तेमाल करने से आपको ये मसला हो जाता है। सो सही ग़िज़ाएँ खाएँ, सही खाने खाएँ, चुन चुन के खाएँ, देख देख के खाएँ, तो फिर देखिएगा क्या आपको कोई मसला है या यूं ही ऐसा हो जाता है आप लोगों के साथ। इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं मौजूद, उनकी तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, hiya. Hi there. Hi, your voice is very low. I can't hear you properly. Sorry, I didn't hear you very well. Say that again, sister. Your voice is very low. I can't hear you properly. Can you please speak a little louder? Can you hear me now? Yeah. Okay, a little fine. bit better. Yeah. Well, you can just say your question and then listen to the on air. Yeah. Listen to me on TV. Yeah. Thank you very much. Yeah, I just want to know that I have got cracked heels. I apply Vaseline and then put socks on, but still have got some cracked heels. So, any home remedy for that? Yes, sure. I'll tell you on air, sister. Yeah. Thanks. Thank you. Thank you for calling. Bye bye. Yes, Vaseline can help you sometime. It can really just temporarily make you feel better, but no, the problem will not go away. Problem actually started with your diet. You probably didn't eat very well, so you need to see that you're not having too many coffees and too many teas or something that which is actually giving a lot of heat in your body. Heat creates dehydration, and dehydration creates cracks in feet. And sometimes not wearing suitable shoes can cause the trouble as well. So if you think you're not comfortable when you walk around in your everyday feet slippers that you wear at home, if you're not happy and they give you uncomfortable feeling, you need to change them. You have to really buy shoes that you feel not worn, like you're feeling that you're not wearing any shoes, then it can help. So these things you need to look at first, and secondly, yes, you can have a control on them. Yes, you can get rid of the cracks. Vaseline application can help once they heal. If you still have a problem, you can use every night, maybe will sort out the problem, but the problem it caused, you need to look at that too. Now, dehydration, as like I said to you, is a cause of it, so drinking a lot of water will really help. Glass of milk with a teaspoon of honey in it every single day or every other day can also help. Now, the same thing can be applied on your foot. A teaspoon of honey with a teaspoon of the milk together, mix it together, make it like a paste, and apply on your cracked feet. Good scrub. I mean, like a scrubbing thing. You need to scrub it, or shall I say, rub it on your heels, and leave it for half an hour, maybe 20 minutes. It should be okay as well. And then wipe it off with cotton dipped in hot water. It may take a little time. It depends how bad they are. If they're not that bad, so very soon you'll start seeing the difference. If not, it may take a good month before you can actually see your feet, very smooth feet. What I told you earlier about pedicure, if you follow that as well every other day, that can help you as well to go back to normal skin. So please do pay attention to these things, and hopefully your feet will be okay. Another lotion you can make, you can get yourself a little empty glass bottle. Make sure it's nice and clean if it's used before, or if you can buy a new fresh one, and add in there about a tablespoon of castor oil, about a tablespoon of olive oil in there, and a tablespoon of honey. Now, all these three things, mix them together, and maybe a few, say a few drops or few
I was going to say pinches, yes, pinches of kalonji, you can get that from shops, black seeds, nigella seeds, you can get them, add it to those oils. Now, put it away for a week, do tight the lid, and so it's really airtight, put it away for a week, and after a week, you can start using that lotion on your feet as well. It's a very good remedy for skin, any problem skin, you use that remedy, hopefully you will see result very soon and very quick. But if you've done that and you applied it for a week, only week of doing the pedicures I told you in every other day, and the lotion I told you, and the application I told you, all those things, and if you've done it for a whole week and you have not seen any difference in your crack heal, please do call me back, and I probably may need to ask you a bit more question about your diet, and again the shoe wear that you do, maybe that is causing the problem, and that's holding it back for remedies not to work. So might have to go through that. Hopefully that will be very, very beneficial for you, sister. And if you didn't hear anything from which you didn't hear very well, like you said you had a bit of problem hearing me, that I didn't speak loud enough for you, so you can always call back, and I can always repeat whole thing I just told you, and hopefully that you did hear it and you're going to follow it. Please, all those sisters out there, whatever problem you have, your cracked feet, dry skin, sometimes you have a hard skin, many skin problems you have on your feet, please sort them out soon as possible, because like I said to you, they are the major cause of your looks. If you don't look fresh, look dull, and you don't feel good, your hair is falling, your skin, face skin is not glowing, or it's being discolored, and patches and pigmentation. I'm not going to say all of it because of your feet, but most of it because of your feet. So you can help yourself there too. So hopefully जो लोग कभी भी अपने पाँव की बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं और सोचते हैं कि पाँव किसने देखने हैं, जुराबें पहन लेंगे काम हो जाएगा, उनको बताया जाए कि वो चाहे कितनी भी अच्छी क्रीमें लगा लें चेहरे पे, कितना भी अच्छा सोल है और कितनी भी अच्छे तेल लगा लें बालों में, उनके बहुत सारे मसले हल नहीं होने वाले हैं जब तक वो अपने पाँव की देखभाल नहीं करेंगे, अपने पाँव को बेहतर तरीके से नहीं रखेंगे। सो अब मेरी बहनों को भी पता चल गया होगा कि मंथली के हार्मोन्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी आपके फीट से काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। सो अगर आपके पाँव क्रैक्ड हैं, आपके पाँव बिल्कुल डल हैं, स्किन जगह जगह जमा हुई है, हार्ड स्किन है, रफ स्किन है, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स भी फीट से कभी शुरू होती हैं, इस तरह के हैं, तो आपको फ़ौरन से पहले उसको दुरुस्त करना है। होममेड रेमडीज़ के साथ बेहतरीन इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती होममेड रेमडीज़ की तो आप अपने डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। अपने पाँव को बेहतर रखना है, चाहे कहीं भी आपको जाना पड़े, सैलून में चले जाएँ, डॉक्टर के पास चले जाएँ, मुझसे पूछना है मुझसे पूछ लें, लेकिन अपने पाँव के बारे में ज़रूर कुछ करना है। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिना सुन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। जी बस शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। वो एक दफा ना मैंने आपसे गम्स की ब्लीडिंग के बारे में पूछा तो आपने बताया था कि वो लौंग और काली मिर्चें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। ठीक है, तो आप कुछ और रेमेडी बताएंगे प्लीज? जी जी जरूर जरूर बताती हूँ मैं आज आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गम की ब्लीडिंग आपको रात को होती है, सुबह आपको महसूस होती है या सारा दिन चलता है ये? नहीं, सुबह को भी ज्यादातर सुबह को है। हाँ, सुबह जब आप कुली करते हो तो आपको लगता है कि मुंह में काफी खून था। ठीक है, और मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी, जैस्मिन का तेल शायद आपने ना इस्तेमाल किया हो, अगर किया है तो उसको छोड़ के आप कैस्ट्रोल को भी कर सकते हैं, लेकिन जैस्मिन के तेल को थोड़ा सा लेके आप मुंह के अंदर लगाएं अपनी गम्स को। रात के वक्त थोड़ा सा वो ज़रा इसकी फीलिंग अच्छी नहीं होती है, कंफर्टेबल नहीं होती है, तो वो भी लगाने से काफ़ी बेहतर रहते हैं, आपके गम्स मजबूत होते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि एक गिलास पानी का लें, आधा गिलास ले लें पानी का, गर्म पानी हो, ये केटल का पानी गर्म किया हो आपने, तो उस दिन भी मैंने शायद यही कहा था कि आपके उसमें अंदर लौंग डालिएगा और उसमें काली मिर्च डालिएगा और उसमें ही 1 चम्मच हनी की डालें। अब ये थोड़ी देर के लिए रहने दें ताकि थोड़ा सा इसमें वो एक्सट्रैक्ट निकल आए लौंग के, और एक्सट्रैक्ट निकल आए काली मिर्च के, और साथ में जो अभी मैंने कहा है आपको, इसमें आप अगर हनी की 1 बड़ी चम्मच रखें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब इसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा चाहे थोड़ा सा पाउडर बना के इसमें डालें, गरम गरम पानी हो केटल का, सो किसी गिलास में या किसी प्याली में डाल के रखें आप
5 मिनट में शायद वो ठंडा हो जाता है या नीम गर्म हो जाता है, तो उसकी कुलियाँ करें। आप कुलियाँ करते वक्त भी कम से कम आप सोने से पहले उसको कम से कम 20 सेकंड तक मुंह में रखें। सो कुल्ली से जब आपने मुंह भरा होगा घूंट पीने के लिए तो उसको मुंह पे रखें और कुलियाँ करते रहें और फिर फेंकें, यानी कि मुंह के अंदर वो कम से कम रहें ताकि आपके गम्स के अंदर जा सके, आपकी जो दांतों के अंदर वो अच्छी तरह जा सके और जर्म्स को किल कर सके जो कि खोज हो सकते हैं। अब अगर स्किन बहुत डेलिकेट है, ये खाने का आपका तरीका सही नहीं होगा या आपने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा, बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ें लेते होंगे तो गम जो है ना वो डेलिकेट हो जाते हैं, जिससे मैंने भी कहा कि जो होता है जास्मिन का तेल या ऑलिव ऑयल को भी अपनी दांतों को अच्छी तरह मलने से गम को उंगली पर लगा लें तो आपको बेहतरी दिखाई दे सकती है। उसके अलावा थोड़ी सारी और भी मेरे पास रेमेडीज़ हैं। इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम देखिएगा तो मैं दांतों के बारे में ही सारा बता दूंगी और जो आपका दिल करे वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी। हेलो। ओहो आप इंतज़ार नहीं किया मेरी बहन, तो क्योंकि मुझे बताया गया था कि आप लाइन पे हैं और बात करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी बात को मुकम्मल करना था फिर भी मैंने जल्दी किया है, लेकिन आपने सब्र का दामन छोड़ दिया। कोई बात नहीं, फिर से कॉल कर लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम हमारा ख़त्म होने को है, थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएगा। सो फिर कल का दिन है, पूरी 24 आवर हो जाएंगे। आपका कोई मसला शायद कोई ज़्यादा पेचीदा हो, बालों का है तो और बाल गिर पड़ेंगे कल तक, स्किन का है तो और स्किन ख़राब हो सकती है। सो कोई भी जो चीज़ कल की है ना वो आज करनी है और आज करनी है, कभी करनी है और भी करनी है तो ये भी करनी है, क्योंकि इस तरह हम अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं जब हम कल पे छोड़ देते हैं और फिर वो इस हद तक पड़ती हैं कि डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होता है, ऑपरेशन करने पड़ते हैं जाके आपको, तब आपको अपनी यानी कि जो भी सूरत हाल होती है उसमें बेहतरी दिखाई देती है।